صومالیہ میں بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے پاکستانیوں میں کراچی کے رہائشی یاسر خان بھی شامل ہیں۔ یاسر خان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اب تو خدا را کچھ کریں، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ہماری نمائندہ اقرا اوان یاسر خان کی اہلیہ کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ اقرا بتائیے گا۔ جی بالکل، صومالیہ میں بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے پاکستانیوں کی جو مشکلات ہیں وہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود اب تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اہل خانہ کا کیا مطالبہ ہے، کیا کہتے ہیں، یہ بتائے گا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ کتنے ماہ پہلے گھر سے گئے تھے اور اب تک کتنی دفعہ رابطہ ہو چکا ہے آپ کا؟ 7 مہینے پہلے گئے تھے اور 4 مہینے سے جو ہے وہ ان کا جہاز ہائی جیک ہوا ہوا ہے اور ہماری بات بھی ان سے 4 دفعہ ہی ہوئی ہے۔ مہینے میں 1 دفعہ بات کراتے ہیں وہ، لیکن بس ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ابھی تک کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ یہ بتائیں ہمیں کہ ہماری حکومت نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہو، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ان سے رابطہ کرے اور نیگوشیٹ کرے۔ لیکن بس ہماری بھی اب اپنی حکومت سے یہی ایک اپیل ہے کہ اب ہو جانا چاہیے، کیونکہ 5واں مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں ہے ان کی طرف سے، بہت سلو چل رہا ہے سب کچھ۔ تو پلیز ان لوگوں سے رابطہ کریں اور ہمارے لوگوں کو اب واپس لے کر آئیں۔ بالکل، یاسر خان کی فیملی میرے ساتھ موجود تھی اور ان کی اہلیہ کا یہ مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان معاملات پر نظر ثانی کریں اور ان کے گھر کے پیاروں کو جو ہے وہ جلد از جلد بازیاب کروایا جائے۔ جی بتائیں کہ ٹیکسلا میں ٹک ٹاکر خاتون کے قتل کا ڈراپ سین، باپ اور بھائی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ٹک ٹاکر خاتون کا اندھا قتل ٹریس کر لیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا کہ 100 سے زائد سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد لی گئی ہے۔ ملک طارق محبوب ہیومن انٹیلیجنس سے بھی قاتلوں تک رسائی ملی ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز ملک خالد طارق محمود کی جانب سے بتایا گیا ہے ٹیکسلا میں ٹک ٹاکر خاتون کے قتل کا ڈراپ سین ہوا ہے۔ ایس ایس پی آپریشن راولپنڈی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ باپ اور بھائی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹک ٹاکر خاتون کا اندھا قتل ٹریس کر لیا گیا ہے اور اس میں 100 سے زائد کیمراز کی مدد لی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گجرات میں ضلع انتظامیہ کی دفاتر سے چند فٹ کے فاصلے پر واقع مرکزی پوسٹ آفس میں بھی کئی دنوں سے پانی جمع ہے۔ صارفین کو گندے اور بدبودار پانی سے گزر کر پوسٹ آفس کے اندر جانا پڑ رہا ہے۔ مزید بات کریں گے، ذوالفقار حیدر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ذوالفقار بتائے گا کیا صورتحال ہے یہاں کی؟ جی بالکل، یہ گجرات کا پوسٹ آفس ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں صارفین آتے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس پوسٹ آفس میں بارش کا پانی جمع ہے، بدبو اور تعفن ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اس پانی کے باعث عملے کو روزمرہ کے کام کاج میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اسی گندے پانی سے گزر کر صارفین جو ہے وہ پوسٹ آفس کے اندر جانے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ پانی جمع ہونا ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کاکروچ جنتا پارٹی کی اسکول ٹھیک کرو مہم مودی سرکار کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ جے پور میں بی جے پی کے انتہا پسندوں نے کارکنان پر حملہ کر دیا، تشدد کا نشانہ بنایا، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ سی جے پی کے بانی ابھیجیت دپکے نے کہا کہ حکومتی جماعت کے غنڈے ہمارے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ نئی دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے تشدد کی مذمت کی۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ، حکومت نے حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے۔ آپ کو یہاں اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے اور حکومت نے حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے، جبکہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے اور حکومت نے حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے اور اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سہیل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को जो बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था, उसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दायर कर रखी है, लेकिन अब उसमें एक नई दरखास्त जल्द समाअत की भी दायर कर दी गई है। और इस दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में वाज़ेह टाइम लाइन दी गई थी और एक वक्त मुकर्रर किया गया था बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए, लिहाजा जरूरी है कि इसके खिलाफ जो नजरसानी है उस पर भी जल्द समाअत हो, ताकि तौहीन अदालत का कोई भी उसमें उनसे जो है वो सामने ना आ सके। और जल्द इसको मुकर्रर करने की दरखास्त इसमें की गई है। और ये मौक़िफ़ भी रखा गया है कि बानी पीटीआई को जो अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्मनामा दिया गया था, उसमें जो ऐसे एरर्स मौजूद हैं जिन पर नजरसानी वक्त की जरूरत है, लिहाजा इसको जल्द जो नया हफ्ता है उसमें पहले दिन समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ऐसी इस्तदा इसमें की गई है। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुहेल। पीटीआई बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा। वजीर आजम समेत विफाकी वजीर कानून और वजीर इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करना सोची समझी साजिश थी, रास्ते में कोई रश नहीं था, सिर्फ अदालत ही नहीं अवाम में भी आवाजें उठाएंगे। बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। तमाम लवाजमात पूरे किए गए। पिम्स में तिबी मुआयना कराया गया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और हमशीरा भी मौजूद थी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा पीटीआई ने बेबुनियाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी। असल में तौहीन अदालत तो कैदी की फैमिली और पार्टी ने की। बयानबाजी, सियासत, मुआजमा लगाकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो हशाश बशाश है। हमारा शुरू से मौकिफ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ, जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। क्या शिफा के डॉक्टर वहां मौजूद थे? जी मौजूद थे। तमाम लवाजमात जो उस ऑर्डर के तहत इंतजामिया को हिदायत जारी की गई थी, वो तमाम लवाजमात पूरे किए गए और आइन और कानून के मुताबिक इंतजामिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है कि जब कोर्ट ने सियासत से मना कर दिया तो टोलियों में लोगों को जमा करना, मजमा इकट्ठा करना, इंतजामिया के लिए रुकावट पैदा करना। ये पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह, अपने लीडर, जिसको वो कहते हैं बानियों में से हमारा एक बानी है, उसके इलाज में रखना डाले। हुकूमत ने बानी के इलाज से मुतालिक फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया मगर अमल दरामद नहीं हुआ। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की तनकीद। हंगू में खिताब करते हुए कहा कि इदारों को सोचना होगा कि ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। नौजवानों ने मुल्क का फैसला करना है, उन्हें अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। पिम्स में 2022 से मौजूद सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत ताहाल गैर फाल है। मशीन कार्डियोलॉजी के बजाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद होने का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया शोबे रेडियोलॉजी के जिम्मेदारान की मुबैना चपकलिश के बायस मरीज तशखीस की सहूलत से महरूम हो गए हैं। इंतजामी गफलत और राबताकारी के फुकदान पर वजीर आजम ने नोटिस लेकर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। टीका खान सानी इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे। अस्पताल में 2022 से मौजूद सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत मरीजों के लिए ताहाल फाल न हो सकी। मशीन कार्डियोलॉजी के बजाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद, मगर अस्पताल इंतजामिया इतनी बड़ी सहूलत की मौजूदगी से ही लाइल्म निकली। समा ने मामले का खोज लगा ली। कहना है कि अस्पताल इंतजामिया और रेडियोलॉजी के जिम्मेदारान के दरमियान मुबैना रंजिश और राबताकारी के फुकदान के बायस मरीज जदीद तशखीसी सहूलत से महरूम रहे। सेक्रेटरी सेहत के हालिया दौरे के दौरान भी इंतजामी और तकनीकी नकाइस सामने आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस ले लिया। हकायक और जिम्मेदारान के तयन के लिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मतलूबा तकनीकी सहूलत, इंसानी वसाइल और सॉफ्टवेयर की दस्तयाबी समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज जेब अली, डॉक्टर नुसरतुल्लाह चौधरी, प्रोफेसर नदीम हयात, डॉक्टर अजमत हयात और उमर फारूक शामिल हैं। जरूरत के मुताबिक मजीद अरकान भी शामिल किए जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कराची के चैलेंजेस की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। बानी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा मुत्तहिदा ने KMC DMC में चुन चुन कर दहशतगर्दों को भर्ती किया। पब्लिक पार्क्स की जगह शादी हॉल्स बनाए, फुटपाथ तक बेचे गए। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए। लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद। क्यों वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं। जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया कि इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से अब इंतजामी यूनिट्स की बातें हो रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत और MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू, कहा वक्त आ गया है कि किसी की अयाशी बचाएं या फिर पाकिस्तान को बचाएं। सबको ये पाकिस्तान में चलाने वालों को ये एहसास और यकीन और कॉन्फिडेंट हो गया कि इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे तो मुल्क एक आम पाकिस्तानी की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल और अच्छी कारकर्दगी नहीं पहुंच सकती। तो अब पाकिस्तान चलाने वालों की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की सारी जितने भी पिलर्स हैं, उस तरफ से ये वाली बात है कि पाकिस्तान में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का क़याम लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान चलाने और बचाने का जो हल है वही मेरे भी मसाइल का हल है, तो हमसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी सारी जो है वो अय्याशी छीनने जा रही है। अल्लाह का एक अजीब निज़ाम है कि आप किसी की अय्याशी बचा लें, किसी की करप्शन बचा लें या पाकिस्तान बचा लें। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 4-3 से हरा दिया। पहले क्वार्टर में कौमी टीम 2-0 के खसारे से 2-4 थी। राना वहीद अशरफ ने 2, हनान शाहिद और हमादुद्दीन ने 1-1 गोल किया। ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। कौमी टीम अगला मैच पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स की तनख्वाहें, मैच फीस, बोनस और इंतजामात की तफसीलात भी हसास करार। काबीना डिवीजन ने सेनेट को मतलूबा मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया है। सेनेटर तलहा महमूद के सवाल पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PCB ने मुतल्लिका अफराद की राजदारी और सलामती के पेश नज़र ये मालूमात हसास करार दी है। अलबत्ता तफसीलात बंद कमरा ब्रीफिंग में फराहम की जा सकती है। मजीद बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बहजाद सलीमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहजाद साहब, ऐसी भी क्या राजदारी है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तनख्वाहों, मैच फीस, बोनस और इनामात की तफसीलात ईवान बाला को फराहम करने से इनकार किया गया है और इस हवाले से काबीना डिवीजन ने सेनेटर तलहा महमूद की जानिब से तलब करदा मालूमात फराहम न करने के लिए एक अनोखा जवाब पेश किया है कि ये मामला हसास है। काबीना डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की राजदारी और सलामती के पेश नज़र उनकी तनख्वाहों, मैच फीस, बोनस और इनामात से मुतल्लिक मालूमात जो है उनको। आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला। मुस्लिम लीग नून के लिए वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर इत्तफाक़ राय बड़ा चैलेंज बन चुका है। नवाज शरीफ ताहाल हतमी फैसला नहीं कर सके। शाह गुलाम कादिर के साथ बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल है। मज़ीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे उस्मान खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, क्या लग रहा है, कुर्रा किसके नाम का निकलेगा? देखिए, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का जो मरला है उसमें नून लीग को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर अंदरूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ताहाल अभी तक कोई एक उम्मीदवार जो है वो फाइनल नहीं हो सका है। मुशावरत का सिलसिला वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर जारी रखे हुए नवाज शरीफ और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के सियासी वजन और ऐवान में हिमायत का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। शाह गुलाम कादिर के नाम पर पार्टी के अंदर जो है वो तजब्जुब बरकरार है और जराए का कहना है कि मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर की तजवीज़ भी दे दी गई है, जिसमें
बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो कि इलेक्शन हार गए थे, लेकिन टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर वो अपने नंबर जो है उनको नामजद कर दिया गया। तो इसीलिए अब उनका नाम जो है वो भी ज़ेर गौर लाया जा रहा है और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर इत्तफाक राय पैदा करना जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही अब अगला मरला तय करने का फैसला किया गया और नाम की मंजूरी के बाद हुकूमत साजी का मरला आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ के फैसले पर जो है आज़ाद कश्मीर की सियासत की तमाम नजरें जो है मरकूज हैं और वज़ारत उज़्मा का उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हकायक दिखाने पर समा की तारीफ। कहा समा ने तख्ते लाहौर को बेनकाब कर दिया। लाहौर की असर सूरत हाल दिखाई है, मसाइल हर जगह मौजूद है, तनकीद का बुरा नहीं मनाना चाहिए। सिंध हुकूमत मसाइल दिखाने का बुरा नहीं मानती, पंजाब हुकूमत अपने खिलाफ खबरों को रोकती है। समा टीवी को मैं शाबाश देता हूँ। तरीके से उन्होंने तख्ते लाहौर वालों को बेनकाब किया है, जो एक्चुअली लाहौर में पोजीशन हुई है वो किया है। तो आपने सही साफत दिखाई है। बाकी शायद चैनल आप जितनी हिम्मत ना कर पा रहे हो या कोई और मसला है, तो लाहौर में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, पेशावर में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, कोयटा में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, सिंध में जहाँ जहाँ अच्छा काम हुआ है तो सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आज सिंध में कोई चैलेंज नहीं है, सब अच्छा है। अगर कोई ये कहता है कि सब अच्छा है तो वो फिर वो आवाम को गुमराह कर रहा है। यहाँ अगर पंजाब गवर्नमेंट में या दूसरी जगहों पे मीडिया को ये इस तरीके से इश्तिहारों से उसको मुंसलिक किया जाता है कि हमारे चैनल के खिलाफ कोई खबर चली, हमारे हुकूमत के खिलाफ कोई खबर चली तो आपके इश्तिहार बंद हो जाएंगे, वो उनकी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी नहीं है। बुरा है अगर सिंध में कहीं हो रहा है तो उसको आप दिखाएं, किसी ने आपको मना नहीं किया। इस्लाहत के लिए हम उसको इस्लाहत इन चीज़ों को ठीक करें। समा टीवी ने अच्छा काम किया, आपको काबिल तारीफ। अब रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान के इलाके जहांगीराबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज ताफुन ज़दा पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। अहले इलाका पूछते हैं कहाँ है सुथरा पंजाब। मुकर्रम खान तफसीलात बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर मुल्तान के इलाके जहांगीराबाद के हैं, जहां सफाई के दावे अमली सूरत हाल के सामने दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। गलियों और खाली प्लॉट्स में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं, जबकि सीवरेज का गंदा पानी भी जमा है। इतनी गंदगी है, बंदे लोग बीमार हो रहे हैं, कोई चीज़ नहीं है। और ये इनकी गाड़ियाँ फिर रही हैं, रोड पे जाके देखो इतनी गाड़ी फिर रही खड़ी है। उनको बोलो ना आओ जाके पानी निकालो, कहते हमारा इलाका ही नहीं है, हम कहाँ से आए। गंदे पानी और कूड़े के बाइस इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि गुजरने के लिए रास्ते तक मुश्किल हो चुके हैं, जबकि सफाई की नाकिस सूरत हाल के बाइस बीमारियां फैल रही हैं। अभी तो आपके सामने कितना गंद है, कोई भी नहीं आ रहा, ना कोई जाते हैं तो सुनते नहीं आ रहे हैं, बस यही काम है इनका। सुथरा पंजाब के दावों के बाद जहांगीराबाद गंदगी में डूबा है। शहरी फौरी सफाई और सीवरेज की बहाली के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। सुथरा पंजाब और वासा की नहरी ने फैसलाबाद नेशनल कॉलोनी के मकीनों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। गलियों में कचरे के ढेर और जोहड़ मौजूद है। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। नईम कैसर की रिपोर्ट में जानिए। साफ़ सुथरा पंजाब वाले आते हैं, वो इधर से बैठ बूढ़ के चाय शाय पी के हर घर से 1000 रुपया लेते हैं। नहीं तो मेरे पास आए, मैं आपको बता दूंगा कौन सा वर्कर साफ़ सुथरे वाले हमसे 1000 रुपया लेते हैं और हम हमें सुबह का नाश्ता भी कराते हैं, और फिर भी ये हमारा हालात है। मरीम नवाज साहबा, आपको सब बच्चे की जो रिपोर्ट दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हकीकत में सुथरे पंजाब का ये सूरत हाल है। ये हमारा जो शहर है ये दूर दूर का गाँव नहीं है, ये सिटी के दरमियान का इलाका है। ये गंदगी कोई 4-5 साल से है। नून लीग वालों के पास जाते हैं, वो कहता है जो कौन सा हमें वो आप लोगों ने वोट दिया, हम तो आपके एरिया से हारे हुए हैं, तो हम क्यों आपका काम करवाएं।